जो भी हो कॉम्पिटिटर, जो भी हो कैंडिडेट, उसको सेम टाइम्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है. सेम रूल सेम रेगुलेशन सेम थिंग्स, राइट. एज फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज पेंटिंग competition is there, all students have should be in this age criteria. All candidates should be come in within a time. All candidates should be finish the artwork within a time. All the students should follow these rules and regulation. For all the students, this is said that judges decision will be the final decision, right. So that means all the candidate should be taken as a same direction, right. So this is called competition, right. So competition for connotative emotion, you have to memorize, you can memorize, right. But this rotation, that is defined. This rotation trick, क्या ट्रिक हो सकता है? डायरेक्शन, वेरियस डायरेक्शन. दो डिफाइंड डायरेक्शन को डिसरोटेशन मोशन बोला जाता है, ठीक है. दोनों लोब्स डिफाइंड डायरेक्शन में जाएगा, उसको बोला जाता है डिसरोटेशन मोशन. दोनों लोब सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन में यहाँ पर दोनों लेफ्ट और दोनों राइट, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेटरी मोशन. ओके, ना सॉरी. Electrocyclic reaction are those in which rings are closed in acyclic conjugated polyenes to cycloalkenes. At the expense of double or triple bond. And also reverse similar reverse ring opening reaction. Okay, the electrocyclic reaction are those in which rings are closed in acyclic conjugated polyenes to cycloalkenes. Maybe acyclic conjugated polyenes to cycloalkenes that should be produced, or other way there must be ring opening can be there, cycloalkenes to polyenes. Okay, तो acyclic conjugated polyenes to cycloalkenes भी प्रोड्यूस होता है. वहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नष्ट होता है. मतलब क्या होता है, आपका कोई भी पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है. और अदरवाइज रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है, वहाँ पर रिवर्स प्रोसेस, दैट मीन्स साइक्लोएल्किन्स टू पॉलीन्स होता है, एसाइक्लिक पॉलीन्स. वहाँ पर क्या होता है, फिर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जनरेट कर जाता है. तो दो डिफाइंड प्रोसेस होता है, एक एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स टू साइक्लोएल्किन्स एंड दूसरा साइक्लोएल्किन्स टू एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स. तो एक होता है रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, दूसरा होता है रिंग ओपनिंग रिएक्शन. दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब सिमिलर टाइप का पैटर्न होता है, पर एक का दूसरे का
रिवर्स होता है, ठीक है। ओके, नाउ this definition is okay, but we have to take the more generalized equation. Electrocyclic reactions are pericyclic reactions involving ring opening or ring closing. Conversion of pi bond to sigma bond and sigma bond to pi bond respectively. Okay. Electrocycle reaction are nothing but that is a one type of pericycle reaction involving ring opening and also ring closing. Both can be there. And ring opening, if ring opening हो जाए, and respectively, I said respectively means what? Respectively means that should be respective. Ring opening मतलब होता है conversion of pi bond to sigma bond. रिंग ओपनिंग का मतलब कन्वर्शन ऑफ पाई बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड. जब भी रिंग ओपनिंग होता है बार बार देखना, रिंग ओपनिंग रिंग ओपनिंग में आपका पाई बॉन्ड नहीं है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड प्रोड्यूस होता है रिंग ओपनिंग में, ठीक है ना. पाई बॉन्ड ना पाई बॉन्ड से सिग्मा, ठीक है, पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होता है. और रिंग क्लोजिंग जहाँ पर होता है सिग्मा बॉन्ड से रिंग ओपनिंग, अच्छा सिग्मा बॉन्ड टू पाई बॉन्ड होता है एंड रिंग क्लोजिंग में पाई से सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है. ओके, तो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोसाइक्लेशन. ओके, नेक्स्ट वन. Now we have to come in example. Right? There must be a hydrogen out there. Okay, that is called 2E4E. Hexa 1,4 diene. Okay, when H nu is there, you have to do the photo energy. What happens? CC dot 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 H dot dot H. Okay, this is called ring closing reaction. This is called ring क्लोजिंग रिएक्शन. ओके, रिंग क्लोज हो रहा है यहाँ पर. दूसरा क्या होता है,
both says their same side. So this is a ring opening reaction. So both can be take place for electrocyclic reaction, ring closing as well as ring opening. Okay. Next one. Now always remember, here in electrocyclic reaction, basically there should be two rotation. Two type of rotations are there. First one, con rotation, rotatory motion. Next one, this rotatory motion. One is con rotatory motion, other is dis rotatory motion. During an electrocyclic reaction, an acyclic compound, each of the terminal carbon atom and their substituent rotate about 90 degrees around the bond to which they are attached to form a single bond of the cyclic product, and the reverse course is followed in case of ring opening. इसका मतलब क्या होता है, आपका जो लोब होगा, सपोज यहाँ पर जो लोब होगा, सपोज दिस इज प्लस, या आप शेड भी कर सकते हो, इसका एंगल 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री क्या होता है, ऐसा 90 डिग्री रोटेशन होता है। एक इसको क्या बोला जाता है, इसको और इसको टर्मिनल लोब। जो भी बॉन्डिंग होगा, जो यहाँ पर हम देखेंगे टर्मिनल लोब को, वो टर्मिनल लोब क्या होता है, 90 डिग्री रोटेशन करके बॉन्डिंग इंटरेक्शन करता है। बॉन्डिंग इंटरेक्शन तभी होता है जब दोनों का फेस सेम होता है। Suppose this is the face, this is the face, ठीक है? नहीं, रुको, क्या बोलूं, ये एक फेस होता है, लो, ये एक फेस होता है, तो ये दोनों फेस अगर सेम फेस हो तभी बॉन्डिंग होता है, और अगर ए फेस और ए फेस एक साथ तो बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। पर ए फेस, ये दोनों फेस, ए फेस और ए फेस बॉन्डिंग होता है। ओके, तो जो टर्मिनल लोब होता है वो अगर सेम फेस का हो और वो 90 डिग्री रोटेशन होता है, इसलिए क्या होता है, 90 डिग्री रोटेशन के बाद ऐसे अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, बॉन्डिंग होता है सेम का इसका। ऐसा बॉन्डिंग हो तो इसको बोला जाता है बॉन्डिंग। अगर ऐसा हो इसको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। मतलब फेस अलग है इसलिए बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, सेम फेस होना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। नाउ always remember, जब भी suppose there must be a lobe is there, so this lobe or any lobe, तो conrotatory motion मतलब क्या होता है, conrotatory motion होता है both are either clockwise और both are either एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही क्लॉकवाइज होगा और दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ऐसा होता है, मेरे जैसा कुछ कैंडिडेट होता है जिसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में प्रॉब्लम होता है, लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कहाँ पर, रास्ता जो क्रॉस होता है ना, क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम तो जानते हैं इंडिया में क्या होता है, लेफ्ट को फॉलो करना होता है कि लेफ्ट फॉलो करते जाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पर राइट फॉलो करो तो होता है क्या, बहुत सारा एक्सीडेंट होने का एक होता है। और मुझे तो लेफ्ट राइट में ही प्रॉब्लम होता है,
तो क्या होता है रास्ते में जो क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है लेफ्ट राइट। और क्या किस में प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स में लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होता है। यू नो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। मेरा तो ऐसा भी हुआ था क्लास 10 में, मैंने एक मैथमेटिक्स किया, उसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने दोनों साइड एकदम ठीक करके कैलकुलेशन करके इक्वल दिखा दिया। पर क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड होना है उसको मैंने राइट हैंड साइड लिखा, और जो राइट हैंड साइड लिखना होना था मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड लिया। तो इस वजह से मेरा मैथ का बहुत, आई थिंक टोटल मैथ ही काट दिया। जो भी हो वो जैसे ही हो, तो ये होना नहीं चाहिए, है ना, लेफ्ट और राइट में। तो जब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में प्रॉब्लम हो तब देख लेना अपना घड़ी को देख लेना। रेफरेंस होता है आपका घड़ी, आपका जो क्लॉक होता है वो टेबल क्लॉक हो सकता है, आपका रिस्ट वॉच हो सकता है, आपका जो वॉल में जो घड़ी है वो हो सकता है, कोई भी घड़ी हो सकता है। डिजिटल घड़ी मत देखना, जो एनालॉग घड़ी होता है वो देखना, क्योंकि डिजिटल घड़ी में तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आवर्स होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है। तो उससे मत देखना, जो एनालॉग घड़ी होता है वहाँ पर देखना जो काटा होता है वो मिनट का हो, घंटे का हो या सेकंड का हो, वो किस ओर जा रहा है, वो इस ओर जा रहा है मतलब वो क्लॉकवाइज है, उसका ठीक ऑपोजिट होगा एंटी क्लॉकवाइज। हो गया, तो ठीक है। अगर डिसोरिएशन हो तब क्या होगा, डिसोरिएशन में एक अगर क्लॉकवाइज जाए तो दूसरे का दुश्मनी हो, मतलब होता है ना दोनों क्लासमेट हो, तो क्या होता है एक अगर राइट में जाए दूसरा नहीं, मैं राइट में नहीं जाऊंगा लेफ्ट में जाऊंगा, राइट, ऐसा होता है। तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होता है। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज में हो तो दूसरा क्लॉकवाइज होता है। मतलब कभी भी किसी भी डिसीजन में ये दोनों एक जैसा नहीं होता है, इसको ही बोला जाता है डिसोसिएशन मोशन। ठीक है, ऐसा होता है। मेरा क्लास में एक कैप्टन था, उसका जो डिसीजन और मेरा जो डिसीजन एकदम अपोजिट होता था। मैं जो बोलूँ उसको मेरा विरोध करना ही है, और वो जो बोले मैं उसका विरोध करता ही हूँ। तो ऐसा चीज जब होता है, एक क्लॉकवाइज होता है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है दूसरा क्लॉकवाइज होता है, उसको बोला जाता है डिसोरिएटरी मोशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, अब देखो, अब आपको ऑर्बिटल का जो इमो है वो भी जानना पड़ता है, क्योंकि आपका सिंपल टिक तो यूज कर सकते हो, पर आपका अगर वास्ट नॉलेज रखना चाहिए, अगर सिंपल टिक भूल जाओ तब आपका नॉलेज आपका क्या करता है, हेल्प करता है, राइट। तो जो 1,3-ब्यूटाडाइन का होमो होता है, पहले इस होमो याद रखना। पहले एक रूल याद रखो, उसके बाद होमो रूल में बोल रही हूँ। पहले एक रूल फॉलो करना है। क्या होता है, फॉरेन सिस्टम, उसको अगर थर्मल दो उसका होमो कंसिडर होगा एंड कॉन्ट्रोटरी मोशन होगा। फॉरेन सिस्टम मतलब क्या होता है, वो 4 पाई होता है, वो 8 पाई हो सकता है, वो 12 पाई हो सकता है, जो भी वो फॉरेन पाई, इनका वैल्यू जो भी लिख दो, बट इनका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 1 से होगा। तो उसको उस सिस्टम को क्या बोलना चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रिक सिस्टम। इसको हम दूसरे तरफ से क्या बोलते हैं, हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। वी हैव टू से these systems are anti-aromatic compounds because they are foreign pi electric system. So when we have to use heat, foreign pi electric system heat when used, we most probably consider their homo, highest occupied molecular orbital, and there should be the rotation will be counter-rotating motion. That means both should be clockwise or both should be anti-clockwise. Similar thing. So when foreign is there, so we have to reverse only. So foreign will be fixed, but things are reversed. Heat we never used here. We have to use here H nu, reversed. Homo we never used. We use LUMO. Here
reversed. Conrotator we never used. We use disrotation. That is that all the things that should be reversed when condition change. When heat is there, so we have to consider HOMO and conrotatory motion for point pi reactor system. But when we have to use photochemical condition, on that case we have to use the LUMO and also disrotatory motion. Okay. Again, now we have to say use 4n plus 2 reactor system. So what should be changed? That should be reversed. That means heat is fixed, right? Heat fixed, but that should be LUMO. That should be disruption. Car reverse. The reverse of this. This reverse this. This reverse this. Okay. 4n plus 2 जब हीट यूज करोगे आपको लूमो कंसिडर करना पड़ेगा. लूमो ना, ये रिवर्स नहीं होता है, ये भी ठीक है, ये होमो, पर आपका इस कंडीशन रिवर्स हो जाता है, दिस रिवर्स होता है. नेक्स्ट, आपका 4n plus 2 फिक्स्ड है, अब सब रिवर्स होगा. अब सब रिवर्स होगा. ए एच न्यू होगा, ए लूमो होगा और ए कॉन्वर्टेड मोशन होगा. ठीक है, तो एक ठीक है. 4n का फर्स्ट हीट का कंडीशन याद रखो तो एच न्यू का कंडीशन ठीक रिवर्स होगा. और 4n plus 2 का हीट याद रखो या एच न्यू याद रखो, दूसरा जो होगा वो रिवर्स होगा. और 4n और 4n plus 2 अगर कंसिडर करो तो वहाँ का जो कंडीशन होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. लूमो तक और होमो तक सिमिलर होगा, पर जो डिसरोटेशन और कॉन्वोल्यूशन का जो बात है वो रिवर्स होगा. अगर हीट यूज करो तो 4n का अगर कौन हो तब 4n plus 2 का डिसरोटेशन होगा. अगर एच यूज करो तो 4n सिस्टम का अगर डिसरोटेटरी मोशन हो तो 4n plus 2 का कॉन्वर्टेटरी मोशन होगा. और बाकी सब सेम होगा जब 4n और 4n plus 2 को आप कंपेयर करोगे सेम कंडीशन में. ठीक है, समझा? ओके, फिर से मैंने बोल रही हूँ, जब 4n और 4n plus 2 दोनों टाइप का सिस्टम को कंसिडर करोगे तब देखना कंडीशन सेम होना चाहिए. हीट है या एच न्यू है, तब होमो और लूमो तो सेम रहेगा पर मोशन चेंज होगा. अगर 4n सिस्टम में हीट में कॉन्वर्टेटरी मोशन हो तो 4n plus 2 में डिसरोटेटरी मोशन होगा. ठीक है, अगर 4n सिस्टम में अगर एच न्यू में डिसरोटेटरी मोशन हो तो 4n plus 2 में एच न्यू में कॉन्वर्टेटरी मोशन होगा. Right? Motion will be defined in same condition for 4n and 4n plus 2 system. Now next consider in comparing with two 4n system or two 4n plus 2 system. दो 4n system में क्या होता है, जब condition change करते हो तो homo, lumo and motion both are changed. So 4n में अगर heat में homo use होता है तो HNO में क्या use होगा, lumo use होगा. 4n में heat में अगर कॉन्वर्टेटरी मोशन होता है तो एच में क्या होगा, डिसरोटेटरी मोशन होगा. सिमिलर थिंग्स कैन बी हैपन फॉर 4n plus 2. 4n plus 2 में अगर हीट में आपको देखना है अगर होमो यूज होता है तो एच में क्या होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, लूमो होगा. और 4n plus 2 में अगर हीट कंडीशन में डिसरोटेटरी मोशन होगा तो ऑब्वियसली बात क्या एच में आपका कॉन्वर्टेटरी मोशन होगा, दैट रिवर्स. Okay, ठीक है. Now we have to consider there should be homo, lumo is matter. There must be homo is matter, lumo is matter. So we have to consider the molecular orbital diagram also. This is the simple trick. You can use the trick that is this is homo, this is lumo, this is convertory motion, this is disrotatory motion and all the same. But in convertory motion, when the convertory motion is there, तो there must stereo can be changed. मतलब क्या होता है, दो अगर above the plane हो convertory motion में, दो below the plane हो जाएगा. दो अगर same phase में हो, मतलब दो CH3 are seen to each other, so after convertory motion they become trans to each other. So this type of things are there, stereo that should be changed. If both the CH3 are above the plane, after convertory motion one will be above the plane, other will be below the plane. But this rotatory motion में वैसा नहीं होता है. This rotatory motion में stereo
अनचेंज होता है, मतलब चेंज ही नहीं होता है, जो भी हो सिन हो एंटी हो वही रहता है, उसका जो आत्म परिचय होता है वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, so now we have to consider the orbital diagram, because orbital diagram एक तो आपका सिंपल ट्रिक है, पर सिंपल ट्रिक में सब कुछ होता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा वैसा बहुत सिंपल ट्रिक होता है, और इतना सारा सिंपल ट्रिक याद भी नहीं रहता है, तो तब हमको क्या काम में आता है, नॉलेज काम में आता है। तो देखो, तो हमको सिर्फ क्या होमोलुमो का जो है वो कॉन्सेप्ट लेना है, और आप बाकी जो मिडिल का जो लोब है उसका साइन आपको दिखाना नहीं जरूरी है, आप सिर्फ टर्मिनल कार्बन एंड टर्मिनल कार्बन का जो लोब है उसको ही कंसीडर करो। यू हैव टू कंसीडर ओनली ऑन द टर्मिनल कार्बन्स एंड टर्मिनल कार्बन्स लोब। दिस okay, so now if you do conrotatory motion, so there must be conrotatory motion, you get what, stereo unchange, sorry, stereo change, so what should be happen, two CC are outside to each other, right, but that means both are seen, right, but after the polar formation due to conrotatory motion, conrotation मतलब क्या आता है, stereo change, तो here two CC are seen, right, but here should be the two CC are trans, because these two trans should be there as conrotatory motion is there. But if disrotation motion is there, suppose both in the same direction, so disrotatory motion when there, so that should be this, okay, so both CST should be same side, maybe above the plane, maybe below the plane, disrotatory motion, sorry, okay, इसलिए ऑर्बिटल का पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। Now important, there should be three context you have to memorize. I will later show, I will discuss this later. That is first one, Ponchier molecular, this is my note only, molecular orbital I will give you, okay, in description and also in the post section I will give you, no, not worry, in every phase cycle reaction video I will give the link in description and also in the post section. Ponchier molecular orbital FMO approach. Second one, conservation of orbital symmetry, that is, you can say this is as a correlation diagram. Okay, conservation of orbital symmetry correlation diagram. And third one, aromatic transition state concept, that is called HMO. First one, Ponchier molecular orbital FMO. Next one, conservation of orbital symmetry correlation diagram. And third one, aromatic transition state concept, that is HMO. The three fundamental theories, very basic, very important for point of view to understand the quantum mechanical aspect of phase cycle reaction and also the bonding interaction, anti-bonding interaction, and so many approaches of phase cycle reaction. First, always remember, if you wanted to crack the concept, crack the competitive exam, so there is this, the three theory is not so vital one. But when you have to analyze the reaction and you have to know these all the things with vast knowledge, and if you wanted to research for this phase cycle reaction, so you have to know all the three concepts which are very important. Okay, तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका जो भी हो वहाँ पर ऐसे वैसे
यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। WB सेट में आ सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेसिस होता है, पर CSI नेट गेट और पार्ट में नहीं आता है, ज़्यादातर नहीं आता है। पर आ भी सकता है, कभी कभी हो भी सकता है, पर ज़्यादा तो नहीं आता है। पर आपका अगर भास्ट नॉलेज का ज़रूरत होता है और आपका इस स्पेस रिएक्शन में अगर आपका रिसर्च का इच्छा हो, तो तब आपका एथी थ्योरी आपको जानना चाहिए, राइट। ये याद रखना, अगर आप कुछ भी चीज़ ज़्यादा जान लो तो वहाँ पर आपका लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि नॉलेज ऐसा होता है, नॉलेज होलिस्टिक होता है। होलिस्टिक मतलब क्या होता है, आपका नॉलेज कभी ना कभी आपका टूल जैसा बिहेव करेगा। ऐसा हो सकता है आप जिस फील्ड में हो वहाँ पर ऐसा हो कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से आपका नौकरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, कुछ भी हो, पर ऐसा नहीं होता है कि आप जो सीख रहे हो वो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका वैल्यू ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से आपका जो भी आप सीख रहे हो उसका कुछ तो आपका अच्छा असर होता है, ठीक है। तो ये एक थिंग है। वैसे मेरा क्लास 12 में ऐसा हुआ था कि क्लास 12 में क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स में बहुत सारा न्यू न्यू चैप्टर होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या होता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता है या फॉर्मूला देखता है, फॉर्मूला देखकर क्वेश्चन सॉल्व करता है, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है एंड डन, राइट। पर मेरा जो टीचर था वो मुझे सिर्फ फार्मूला नहीं सिखाया, फार्मूला जनरलाइज कैसे होता है, फार्मूला कैसे हुआ, उसका ब्रीफ हिस्ट्री, उसके पीछे कैसे कैसे लोग खड़ा हुआ था, कैसे कैसे वो डेवलप होता है, कैसे कैसे वो रिलेट होता है, सब कुछ, ठीक है। तो वो मुझे काम में आया कहाँ पर, जब भाईवा हुआ, ठीक है। तो HS में जो भाईवा हुआ वहाँ पर मैडम कोई फॉर्मूला रिलेटेड और कोई एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं किया, वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से कैसे वो फार्मूला आया तो आया, उसमें कैसा ऐसा एफर्ट देना पड़ा, वो कैसे कैसे रिलेट होता है। तो मैं और एक और लड़की छोड़कर कोई नहीं कर पाया, पर हम दोनों अच्छा खासा सब क्वेश्चन अटेंड कर पाए, सब क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो इसलिए बोल रही हूँ, नॉलेज इज होलिस्टिक होता है। हो सकता है उसका जो रिजल्ट आज नहीं मिल जाए, पर उसका रिजल्ट कभी ना कभी आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड subscribe my channel, and I will give the free study materials, okay. And also if you need some query you can comment, okay. And also if you want for any videos related to which topic you have, you can say कौन सा टॉपिक्स आपको चाहिए, PBSL क्वेश्चन आई विल सॉल्व ऑल्सो। एंड लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, because I am from Bengali, so Bengali and also English, Hindi I can eligible, but other language अब अगर आप बोलो तो मुझे सीखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑपा केमिस्ट्री फॉर यूट्यूब चैनल, ऑपा केमिस्ट्री फॉर थ्रेड and also Instagram, ऑपा केमिस्ट्री फॉर Facebook group, ऑपा केमिस्ट्री फॉर Facebook, two groups are there, and Apurupa who has a education consultant for Facebook page, so you can see and also follow me and subscribe me. Thank you.